Dear students, in the last week, in the last period, we have to discussed about the formation of the image by concave mirror in the different position. But now we will have discussed about the image formed by the convex mirror. Okay, so convex mirror always form the virtual and diminished. You are seeing the convex mirror always form the virtual and diminished image. No matter what is the position of the object kept in the front of it. कोई मैटर यहाँ पर नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं. ओके, एवरी पॉइंट पर आपका इमेज वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड. द इमेज फाउंड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज शोन द बिलो. यू आर सीइंग हियर the picture. You are seeing the object is here. So after reflections, the ray of the light appear meets at the point, that does not meet actually at the point. So image formed this type. Now you are seeing the table, the position of the object. We have got two positions. First at infinite and then between infinite and the pole. Infinite, ये pole, this is a pole and this is a infinite मैंने कहीं पर. So suppose that the position of the object is at infinite, then the position of the image is at the focus, behind the mirror, at the focus and behind the mirror. Okay students, highly diminished point size and virtual and erect. The image formed by the convex mirror. So now between infinite and the pole, the image formed between P and F, the image formed between P and F. This is the focus and this is a pole. The image formed between P and F. When the object between pole and the infinite, यही एक पोजीशन आप हमारे पास रहेगी. ओनली वन पोजीशन. एक तो इनफाइनाइट तो अंडरस्टूड है, but excluding at infinite, we got only one position. The object between pole and the infinite, then image formed between focus and the pole, and virtual and erect. Okay students, केवल यही आपका होगा. तो some students asked me, sir, what is the case of the for the convex mirror. तो यही आपका केस है और कुछ नहीं है. तो let's start a very important point to understand the sign convention rule. Sign convention rule is a very very important. So some students asked me in the previous week, sir, which publications कौन सी पब्लिकेशंस की बुक चलेगी. सो आई टोल्ड यू दैट मैं किसी एक पब्लिकेशन से बुक मेरी पास नहीं रहती. जो भी मुझे मैटर बेस्ट मिलता है जहाँ से, मैं वहीं से आपको पिक कर लेता हूँ. जैसे अभी मैंने एक बुक को चेंज किया. सो प्लीज़ यू केयर ऑन द पॉइंट्स, ऑन द जो भी आप पॉइंट्स हों मेरे पर ध्यान देंगे. आपको किसी नोट्स की मतलब किसी और एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जहाँ पर जो ज़रूरत होगी फॉर द प्रैक्टिकल्स तो मैं वो सफिशियंट होगी. बट इफ़ यू वांट टू गो टू इफ़ यू वांट टू परचेज योर स्पेसिफिक फाइल, यू विल गो टू योर स्कूल बुक स्टॉल एंड यू कैन परचेज फ्रॉम देयर. ओके, तो ये इस कारण से मैं किसी स्टूडेंट्स को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये पब्लिकेशन आप खरीद लीजिए, ये परचेज कर लीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द साइन कन्वेंशन रूल. So it's very important point for this chapter and practicals also. So let's start. Sign convention rule. So definition क्या? What is it? It is a convention which fix the sign of the different distances measure. The sign convention followed as is the new Cartesian sign convention. अभी हो सकता है आपको लाइन क्लियर ना हो, तो मैं इसको क्लियर करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यू नो दैट आपको मालूम है कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है. सपोज़ मैं यहाँ पर एक कॉपी में अब स्टार्ट कर रहा हूँ कि इमेज डिस्टेंस u फॉर द
image distance, image distance. And we u for object distance, sorry, u for object distance, and v source for image distance, small. अब ये u और v, तो you know the different object, the different position of object if different in the case of the concave mirror, so image formed different by concave mirror at different place. आपको ये मालूम हो गया है. सो अब यहाँ पर एक देखते हैं कि डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट इमेज डिफरेंट होता है, बट यहाँ पर साइन भी डिफरेंट में भी हो सकता है. सपोज साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव. साइन मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव. वी में भी पॉजिटिव, यू ऑलवेज पॉजिटिव बट सॉरी यू ऑलवेज नेगेटिव, बट वी में भी डिफरेंट पॉजिटिव और नेगेटिव. तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि किस कंडीशन पर यू और वी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं. इसी को लोग साइन कन्वेंशन रूल्स में हम लोग देखते हैं. कैसे डिसाइड करेंगे? हाउ वी विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ द वी एंड यू बी पॉजिटिव और नेगेटिव. आई रिपीट अगेन, हाउ विल यू डिसाइड? इन विच केस you will decide the value of the u and v are positive or negative. So let's go. So suppose that this is a Cartesian and you know axis, x-axis x dash and y dash. Okay, you know axis, this is axis. But suppose that if we draw a concave mirror here and the pole is, and this is a pole point, हाँ ये बिल्कुल मिड पॉइंट जो होता है, दिस इज अ पोल. और पोल को हम लोग यहाँ पर एक कह सकते हैं कि जो आपका ओरिजिन होता है, दिस इज ओरिजिन पॉइंट फॉर द एक्सिस, दिस इज ओरिजिन पॉइंट O in the classic. So this is the first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant, you know. And if we fixed value, if we fixed a concave mirror this type, so pole and origin ये एक है, they are same position, they have same position. यहीं से हम लोग डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं. So you know that this is the first quadrant, means x and y both are positive. The second quadrant negative, x negative, y positive. Third both negative. Fourth में x positive, y negative. ये आपका होता है. So let's start. How will you decide this? Okay. So let's start to decide. Here you are seeing here. This is axis, you know. जैसे मैंने ड्रॉ किया था. This is the u. अब यहाँ पर देखिए कि जो डिस्टेंस इधर होगी वो u होगी, वो नेगेटिव होगी. और हमेशा ऑलवेज वी पुट द ऑल ऑब्जेक्ट इन द लेफ्ट साइड. दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड. सो यू तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से इफ यू मेजर द एक्सिस फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज ओरिजिन एंड पोल. सो इफ वी मेजर from this point to this point, this is a u, so you will decide the u will negative, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस, यहाँ पर ये डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा. एंड अब दिस इज सपोज दैट दिस इज अ फोकस एंड दिस इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर. हाँ, सपोज दैट, तो यहाँ पर इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर हियर एट दिस पॉइंट. सो दिस इज रियल इमेज and this is a v. So because it's also in the left side, x dash साइड में है, तो ये भी नेगेटिव होगा. तो इस कंडीशन पर जो होगा u and v both are negative, बोथ दोनों नेगेटिव होंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट
तो अब यहाँ पर देखना है रूल्स में कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस आल्सो. दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस. सपोज दैट यहाँ पर देखेंगे, दिस इज अ पोल, दिस इज अ फोकस and this is the center of curvature. This is the center of curvature. Suppose that an object behind the center of curvature, so image found between C and F according to the formation of the image. Okay, so this is a U, this is U, and U will negative, and image found this point at this point V also negative. But here you are seeing that the image found between C and P, C and F, and this is the image found by the concave mirror is real and inverted and smaller than object. But if you want to decide the sign rules according to sign convention rule, so U will negative and V will also negative. Suppose that U is equal to 25. U is equal to 25 and V is equal to, suppose that 15. I think 15. Suppose that 15. Okay. So you will decide if you calculate this point. So you will take the both value in the negative form. तो negative form कहाँ पर इसको इस्तेमाल करेंगे? तो मैं I am telling you the mirror formula. Mirror formula, you are seeing that the mirror formula is 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U. 1 upon V plus 1 upon U. This is a mirror formula. So now here, because U is equal to 25, so you take the negative sign minus 25, and V is equal to also 25, 15, so you will take the minus 15. Okay, so now you can decide this. You will put the value of here to find the focal length. So V is equal to minus 25 and V is equal to minus 15 and U is equal to minus 25. Okay, and you can calculate this. You can calculate here. 1 upon F is equal to 1 upon V plus 1 upon U, and V is equal to minus 1 by 15 and U is equal to minus 1 upon 25. So यहाँ पर LCM ले लेंगे, तो LCM में 25 हो जाए 100, 125, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और 15 का LCM. सपोज है 25 इंटू 15, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो यहाँ पर दोनों माइनस हो जाएंगे. तो 25 और 15 LCM is, so LCM is 75. तो 25 3 जा and 15, तो minus 8 upon 75. So 1 upon, so F is equal to minus 75 by 8. This is the focal length. You can divide this. This is F is equal to approximately minus 9.38. ये माइनस में क्यों आ रहा? दिस इज अ फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ सोर्स फादर कि किधर ये बन रहा है. तो फोकल लेंथ यहाँ पर आपका माइनस, मतलब साइड बता रहा है. माइनस जो बता रहा है यहाँ पर वो माइनस क्या है? माइनस यहाँ पर साइड बता रहा है, माइनस 9.38 करके बता रहा है. ओके स्टूडेंट्स, सो आई एम टेलिंग यू बिकॉज you will apply this formula, this method to find the focal length of the concave mirror. Okay, if you have the value of the U and V, if you have the value of the U and V, so how will you find out the focal length?
तो आप तो देन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ u and u in this formula 1 upon v plus 1 upon u by using use the Cartesian साइन कन्वेंशन रूल। साइन कन्वेंशन रूल का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इसको पुटअप करेंगे और फाइनली वैल्यू निकालेंगे। और वैल्यूज़ में जो साइन वैल्यू शो करेगा वो साइन को ये शो करेगा कि इमेज आपका किधर साइड बन रहा है, कहाँ बन रहा है, तो ये आपका शो करेगा। और इसका और सेकेंड थिंग्स की सपोज दैट वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ द वी एंड फोकल लेंथ, सो यू कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। Suppose that we have given the value of the u and the focal length, you can find out the position of the image of the object through this value, through this object. So ये आपका कंप्लीट। तो कुछ कॉमन से पॉइंट्स हैं, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि क्या है। कि एक तो मैंने आई टोल्ड यू द सम फ्यू मिनट्स बिफोर, all distance measured from the pole of the mirror along the principal axis. The distance of the measured same direction of the direction incident light are the taken the positive same distance. So distance and the opposite measured direction incident light are taken the negative. And facts according to mention of the sign convention rule, the radius of the curvature of the concave mirror is taken in the negative and the same for the convex mirror is the positive. मतलब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा r, उसकी वैल्यू नेगेटिव में लिखेंगे कॉन्केव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स के लिए वो पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पर आप मैं दोनों को मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये कॉन्केव मिरर के लिए है तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ होगा, ये सभी नेगेटिव में होगा फॉर द कॉन्केव मिरर। बट अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगा फॉर द कॉन्केव मिरर ये नेगेटिव फॉर्म में होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव फॉर्म में होगा। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगा, कॉन्केव मिरर के लिए जस्ट अपोजिट ऑफ इट्स। नेक्स्ट पॉइंट्स, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। यस, ऑलवेज नेगेटिव, बोथ केसेस, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर इसमें साइन कन्वेंशन रूल अप्लाई करें तो यहाँ से अप्लाई करेंगे तो आपका लेफ्ट साइड ही होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये नेगेटिव में होगा। बाकी जो भी इमेज यहाँ से बनेगा उसको अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। बट यहाँ पर भी देखेंगे सेम साइड, यहाँ पर भी जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। तो यू कैन ऑल्सो डिसाइड दिस बोथ इन द बोथ कंडीशंस ऑफ द कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यू ऑलवेज नेगेटिव, द डिस्टेंस रियल इमेज नेगेटिव, हाँ रियल इमेज नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में नेगेटिव। वर्चुअल इमेज ऑलवेज पॉजिटिव। वाइल साइज, इसी प्रकार से आप साइज को भी डिसाइड कर सकते हैं। यू कैन डिसाइड द साइज। साइज के लिए थोड़ी सी मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, साइज के लिए साइज यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज। क्योंकि ये टॉपिक ही चल रहा है तो मैं टोटली इसको कवर भी कर लेता हूँ ताकि आपके लिए और भी थ्योरी में भी पूरा काम आएगा ये। तो साइज़ के लिए देखते हैं, हालांकि साइज़ के लिए आपको प्रैक्टिस में काम आएंगे। तो ये आपका है, और अब मैंने जब इसको ड्रॉ कर लिया है ब्रॉडर से, या यहाँ पर देख लेते हैं साइज़ के लिए अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल। तो वाई पॉजिटिव होगा, तो यानी कि जो इसका हाइट होगा ये पॉजिटिव होगा और इसका जो इमेज होगा वो नेगेटिव फॉर्म में होगा। ये देखना है बस। जैसे अच्छा आपका कुछ भी मान लो 5 सेंटीमीटर उसका हाइट है, तो ये जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा वो आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्योंकि ये नीचे की ओर है, क्योंकि ये आपका। तो ओके स्टूडेंट्स, if you have any problem you can ask your questions, you can ask your any confusion. So now we have let's start in our points in our aim. So what is our aim and what is our aim? So यहाँ पर हम लोग एम को क्लियर करने के लिए जो है क्या करेंगे, एम हमारा क्या होगा, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर, टू फाइंड
द फोकल लेंथ ऑफ to find the focal length of concave mirror. This is our objective. This is our objective, to find the focal length of concave mirror. So how will you find out the focal length of the concave mirror? So in the previous video I have told you the formation of the image, the formation of the image through the concave mirror. So you are seeing this figure. If we suppose that this is the you are seeing the concave mirror. This is a pole, and this is a focus, and this is the center of curvature. If an object put at the infinite point, तो इमेज फॉर्म्ड एट द फोकस, यानी कि अगर हम कॉनकेव मिरर हमारे पास हो, एक मिरर होल्डर में कहीं आउटसाइड कहीं बाहर जाएं, इफ़ यू गो टू आउटसाइड या आप यहाँ पर कहीं छत पर जाते हो और एक बहुत दूर का कोई पेड़ है, कोई सी ट्री है, कुछ भी आप देखते हैं, यू आर सीइंग द, तो यू कैन सी दिस, यू कैन ऑब्जर्व दिस एक्सपेरिमेंट वेरी इजली इन द लैब. तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से वो मजबूत वो है, बट ओनली वी कैन अंडरस्टैंड हियर. हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, बस हो गया कि एक कॉनकेव मिरर लेंगे, उसको मिरर होल्डर या उसको एक ऑप्टिकल बेंच में उसको होल्ड कर दें और कहीं उसको बाहर ले जाकर कहीं रखें, कहीं ओपन एरिया में जाएं और वहाँ पर किसी दूर ऑब्जेक्ट को, किसी डिस्टेंस दूर ऑब्जेक्ट को देखें और इस कॉनकेव मिरर को लगा दें और इसको चूँकि ये कॉनकेव मिरर ऑलवेज फ्रॉम द रियल इमेज, तो इस टाइप की कोई स्क्रीन देखेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ. ये वाइट शीट है, ये सपोज दैट दिस इज अ स्क्रीन, ये आपका स्क्रीन है, और इसको स्क्रीन को हम लोग उसके सामने रख देंगे तो इमेज यहाँ पर इमेज बनेगा उसका. तो जितने डिस्टेंस पे बनेगा, ये जैसे कैमरा जैसे फ़ोन है और इस फ़ोन पर मान लो मिरर है और इमेज यहाँ पर बन रहा है, तो इस ये आपका मान लो मिरर है, तो इस मिरर से इसका डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेंगे, क्योंकि इमेज वहीं बनेगा जहाँ पर सारी रे ऑफ लाइट आकर के मिलेंगी. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू आर सीइंग दी हियर कि सपोज दैट ये पॉइंट, या एफ पॉइंट पर आपका टोटली फोकस हो रहा है और यहीं पर इमेज बन रहा है. तो यू कैन मेजर दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट वेरी इजीली थ्रू द मीटर स्केल डिसाइड कर सकते हैं, और ये आप यहाँ पर इसको यहाँ मेजरमेंट कर लेंगे, यही आपका फोकल लेंथ हो जाएगा. इट मे बी कि 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15, जो भी आपका जितने फोकल लेंथ का आप मिरर लगाएंगे उतना ही लगभग वो फोकस करेगा. तो इसको यू कैन नॉट से दिस इज एग्जैक्टली फोकस, दिस इज एग्जैक्टली वैल्यू, मे बी कि थोड़ा कम हो ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज इनफाइनाइट पोजीशन क्या होता है, एक कोई डजंट फिक्स पोजीशन, ओके, क्योंकि अगर उसके भी दूर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको भी इनफाइनाइट ले सकते हैं, उससे कोई दूर ऑब्जेक्ट होगा तो उससे कोई भी इनफाइनाइट ले सकते हैं. तो जब डिफरेंट पोजीशन वहाँ पर भी मे बी हो सकती है, तो मे बी कि वहाँ पर जो फोकस होगा वहाँ पर भी थोड़ा कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे. So that is not actually focus, that is only rough focal length. So in this video only we will decide the rough focal length. How will you find the rough focal length? तो फोकल लेंथ का निकालने के लिए आप ऑब्जेक्ट को, जैसे मैंने बताया कि आप दूर ले जा करके किसी एक स्क्रीन पर देखेंगे, जहाँ पर क्लियर हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा, वहाँ पर आपका वो इमेज दिख जाएगा और उसी को मेजरमेंट कर लेंगे. फिर एक दूसरी कंडीशंस आती हैं. अब ये तो आपका हो गया और इसमें हम लोग उसको नोट कर लेते हैं. सपोज दैट इसका डिस्टेंस अगर 10 है, तो मैं आपको जो है अभी वीडियो के लास्ट में मैं उसकी एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको भेज दूंगा, उसकी रीडिंग्स भेज दूंगा, आप उसको लिख लेंगे. बहुत छोटा सा रीडिंग्स है, 2-3 पॉइंट्स का, मैं उसको भेज दूंगा आपको उसमें, और उसको आप लिख लेंगे. क्या क्या लिखना है वो भी मैं आपको बोल दूंगा, बता दूंगा. और जो नहीं लिखना मे बी कि मैं इसको और आपके डेप्थ में करूँगा, जैसा होगा मैं अभी वीडियोस के लास्ट में मैं आपको भेज दूंगा और आप उसको देख लेंगे, जो लिखना होगा उसके लिए बता दूंगा. तो यहाँ पर देख सकते हैं. तो ये कंडीशंस आप लिख सकते हैं, बट इसके बाद कुछ और वैल्यूज़ होती हैं जो भी मैंने बताया कि डिफरेंट वैल्यूज़ कर सकते हैं आप. उसको हम फोकस इनफाइनाइट रख करके बल्कि बिहाइंड सी यहाँ पर रखेंगे, तो उसका इमेज कुछ यहाँ पर आएगा, फोकस से कुछ हटेगा और कुछ
उसी से मेजर यहाँ पर आएगा। तो यू कैन मेजर द बोथ डिस्टेंसेज, दिस इज द यू एंड दिस इज द वी। एंड जो अभी मैंने साइन कन्वेंशन रूल का यूज़ किया है उस अकॉर्डिंग टू उसको वो यूज़ करके उसको मैं सेकंड वीडियोस में आपको बताऊंगा, आज के वीडियोस में नहीं, उसको सेकंड वीडियोस में आपको इसको क्लियर करूंगा कि डिफरेंट यू पर डिफरेंट वी होगा और डिफरेंट वी होगा तो वही साइन कन्वेंशन रूल से 1/u एफ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u के फॉर्मूले से आप उसको अच्छी तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप इस वीडियोस को थोड़ा सा और रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि इस पर मैं आज कुछ क्वेश्चंस भी आपको मैं करूँगा। मैं भी कि अगर क्वेश्चंस करूँगा तो उसका रिटर्निंग उसका होना चाहिए। तो मुझे भी समझ में आया कि आपने इस वीडियोस को कम्प्लीटली देखा है कि नहीं देखा है। मुझे ये भी क्लियर होना ज़रूरी है कि ये जितने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए ज़रूरी भी हैं। हो सकता है कि आप इसको पढ़ भी चुके होंगे, मैं मुझे पता होगा कि शायद आप इसको स्टडी कर चुके हो, नहीं कर चुके हो। तो चूँकि मुझे प्रैक्टिस कराने हैं तो मुझे ये चीज़ें मालूम होना चाहिए कि हाँ, मुझे यही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। सो मैं आपको उस पर सारी चीज़ों पर डिस्कस कर दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक बार मेरा एडवाइस है कि ये सभी पॉइंट्स को जो भी मैंने डिफरेंट इन सभी को आप लोग स्टडी करिए। और इसके लिए अगर आपके पास अगर आपका है पहले वाला तो उसको भी देख लें, अदरवाइज़ ये भी आप पिक भी होगा तो उसको भी समझ सकते हैं। बुक्स है तो आप उससे समझ सकते हैं, कोई भी बुक से समझ सकते हैं। सारे बुक्स में सब लगभग सेम कॉन्सेप्ट होंगे तो आप इसको समझ सकते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चंस मैं इस पर मैं आपको मैं पूछ सकता हूँ, कि आप उसका आंसर भी आई थिंक आपकी तरफ से रिस्पॉन्स भी मुझे मिलेगा। तो ये आपका यहाँ से मैं वीडियोस को एंड करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स।